بلستانی دیکھ رہے ہیں آپ، دوپہر 12 بج چکے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ظہور لولا بناظرین۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت کی پاکستان پر تنقید، اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کو شرمناک دیا قرار۔ دمال ہانجی پورہ علاقے میں حادثہ آیا پیش، حادثے میں فوجی اہلکار ہلاک، 9 دیگر زخمی۔ اہربل وشنو نالہ سے خاتون کی بوسیدہ لاش برآمد، لاش کو مقامی پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا، تحقیقات جاری۔ ایل جی منوج نے سری نگر کے ایس کے اسٹیڈیم میں رانچی کرکٹ میچ کا کیا افتتاح، کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ اسرائیل کا حملہ ناکام بنا دیا، ملک میں فضائی دفاعی کا نظام متحرک، ایران کا بیان۔ سرخی کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ، سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے، اور بات بھارت پاکستان کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ بھارت نے پاکستان پر تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کا یہ حرکت جو ہے وہ شرمناک بھارت کی جانب سے قرار دی گئی ہے، اور برطانیہ ہریش جو کہ بھارت کے مستقل نمائندے ہیں UN میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ بیان قابل مذمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتی برادری یا جو اقلیتی طبقہ ہے ان کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھارت پاکستان کے حوالے سے، اور بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھانے پر پاکستان پر شدید تنقید کی ہے اور اسے گمراہ کن اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے برطانیہ ہریش نے پاکستان کے نمائندے کی تقریر کے جواب میں کہا کہ یہ قابل مذمت اور متوقع کہ ایک وفد نے معلومات کو توڑ مروڑ کر پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی خراب حالت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال اقلیتی برادری خاص کر خواتین کو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں خواتین کی امن سازی کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں کہ بھارت خواتین کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور ملک میں خواتین کی طاقت کو بڑھانے کے لیے تاریخی خواتین ریزرویشن بل 2023 کی منظوری دی ہے۔ ہریش نے مزید کہا کہ بھارت نے 2007 میں لائبیریا میں خواتین کی پہلی مکمل پولیس یونٹ تعینات کی اور بھارت کی 100 سے زائد خواتین امن محافظین عالمی سطح پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ٹیکنالوجی کے استعمال سے خواتین کی شرکت میں اضافہ کرنے اور ڈیجیٹل خلا کو کم کرنے پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ India reiterates its commitment to translating the WPS agenda from theory to practice. We stand ready to collaborate with all stakeholders to build a more peaceful, inclusive and gender equal world. Finally, it is despicable yet entirely predictable that one delegation has chosen to indulge in mischievous provocation based on their tried and tested tactic of spreading misinformation and disinformation. It's completely misplaced to indulge in such political propaganda at this important annual debate. We are well aware that the condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians, in that country remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. Anyway, I could go on, but چلے آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں، اور جنوبی کشمیر سے اس وقت بڑی خبر جہاں پہ کولگام کے دمہال ہانجی پورہ علاقے میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوا ہے، جبکہ 9 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کا علاج فی الحال اسپتال میں جاری ہے، اور یہ بڑا حادثہ فوجی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 10 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے، تاہم انہیں فوری طور پر اگرچہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، وہاں پہ ایک زخمی اہلکار زخمی کی تعداد ملاتے ہوئے دم توڑ دیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے جیل پورہ علاقے میں آج صبح ایک فوجی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک فوجی ہلاک اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ دمال ہانجی پورہ علاقے میں پیش آیا، جس میں یہ کئی اہلکار زخمی ہوئے، ان میں سے ایک زخمی جوان بعد میں زخمی کی تعداد ملاتے ہوئے چل بسا۔ زخمیوں کے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ اگر پولیس نے اس حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے، اور یہ جو
फौजी एहलकार इसमें जख्मी, इनकी शिनाख्त भी हुई है। इनमें एक मेजर रैंक का है गुरदार प्रताप सिंह चंडाल, ये इसमें जख्मी हुए हैं। RSN रविंदर, परवीन सिंह, सचिन सिंह, अमित लाल, हर्ष भट्टी, राजा सिंह, अर्जुन गुर्जर और सुमित, ये 9 फौजी एहलकार है जो इसमें जख्मी हुए हैं। ताहम जीत कुमार ड्राइवर बताया जा रहा है, इसकी इस हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें कि ये 9 RR से 9 राष्ट्रीय राइफल्स की फौज से उसकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर जो है वो जख्मी की ताब मिलाते हुए चल बसा है, जबकि 9 दीगर एहलकार जख्मी हुए हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुलगाम से ही और एक खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि कुलगाम के अहरबल विष्णु नाला से खातून की बोसीदा लाश अहरबल से खबर सामने आ रही है, जहां पे अहरबल विष्णु नाला से खातून की बोसीदा लाश बरामद हुई है, जिसके बाद लाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब बता दें कि इसी इलाके में 30 सितंबर को एक खातून लापता हुई थी और फिलहाल ताहम इस हवाले से पुलिस की मज़ीद तहकीकात जो है वो जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से, कुलगाम के अहरबल विष्णु नाला से आज एक खातून की बोसीदा लाश बरामद हुई है, जिसके बाद लाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। SDRF के एहलकारों ने जिला कुलगाम के सियासी मकाम और वाटरफॉल से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हटमूरू के करीब दरिया से एक खातून की बोसीदा लाश बरामद की। बताया जा रहा है कि चंद मकामी अफराद ने अहरबल के करीब विष्णु नालों में तैरती हुई लाश देखी। इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलने के बाद पुलिस एहलकार और SDRF की टीम मौके पर पहुंचे और लाश को दरिया से बाहर निकाला। बाद लाश को मुकामी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया और पुलिस बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 2024 को इसी इलाके में एक खातून जो है वो लापता हुई थी और ज़राए के मुताबिक तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ये जो खातून है इसकी शिनाख्त श्रीनगर के बट्टामालू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कज़फ़ा फारूक के नाम से हुई है, जो 30 सितंबर 2024 को नाइटपोरा रहने श्रीनगर जो है इसी इलाके से लापता हुई थी। 30 सितंबर 2024 को अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये उसी की डेड बॉडी है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है और खातून के घर वालों की तरफ से भी अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या ये खुदकुशी है या छलांग मारी गई है दरिया में, इस हवाले से अभी तहकीकात जारी है और पुलिस इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसके लिए खिलाड़ियों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा अफजल के कमिश्नर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। ये मैच जम्मू कश्मीर और सर्विस के दरमियान खेला जा रहा है, जिससे मकामी खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वो आज सुबह यहाँ पहुंचे थे और सोशल मीडिया एक्स पर भी उन्होंने एक पोस्ट में तस्वीरें भी शेयर की और कहा कि जम्मू कश्मीर और सर्विस टीमों की खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से उनकी आज सुबह बातचीत हुई और ये तस्वीरें भी हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खिलाड़ियों से आज सुबह जब वहाँ पहुंचे थे तो उनसे मिले, उनसे बातचीत भी की और जो कोचेज थे वहाँ पे उनसे भी बातचीत की और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया है। गुलिस्तान के नुमाइंदा इरफान फाजिल ने खिलाड़ियों और कुछ कोचेज से बातचीत की है। रणजी ट्रॉफी मैचेस हमारे साथ कोच है और साथ ही साथ मैनेजर है सर्विसेज को लेकर। आपका वेलकम सर कश्मीर में। सबसे पहले बताइए आके कैसा लगा आपको? Thank you so much for the welcome and you can see that environment. It is too good basically. You can find out the difference in the culture, in terms of the hospitality of the people, in terms of the environment,
the weather conditions, the weather is too pleasant. Right. और जब रिसेंटली लेजेंड्स हो गया, एक बड़ा मैच हो गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, आपको लगता है कि कश्मीर में अब क्रिकेट की बहार जो है, क्रिकेट का एक नया सीजन दोबारा से काफी सालों के बाद शुरू हुआ? जी हाँ, डेफिनेटली। जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर को कई सालों से देख रहा हूँ और डे बाय डे जम्मू कश्मीर टीम अच्छी इंप्रूव भी कर रही है, और श्रीनगर के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि श्रीनगर में काफी समय बाद ये मैच कंडक्ट हो रहा है। और जहाँ तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स और श्रीनगर के प्लेयर्स का सवाल है, बहुत अच्छे टैलेंट है यहाँ पे, और इस अपने होम ग्राउंड पे इनको एक अच्छा मौका मिलता है, यहाँ की पब्लिक को भी अच्छा मौका मिलता है एक अच्छे फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड का मैच देखने का। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा व्हाट सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स या व्हाट सॉर्ट ऑफ मोर स्ट्राइकिंग थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट है क्रिकेट को बूम करने के लिए, स्पेशली आपने काफी जगह पर खेला भी होगा, देखा भी होगा, कश्मीर के लिए या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कहेंगे? Actually, you can see the stadium per se, if you see, it has all the amenities. It has all the facilities are available. Right. The only thing is we need to cooperate with the players. We need to give that freedom. This is the only thing. We need to nurture their talent, and which is I think they are doing good. So it is good. They are improving. कोचर आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के टैलेंट को जब आपने देखा, यहाँ के मैचेस भी जब आपने ऑब्जर्व किए, आपको लगता है कि कई सारे खिलाड़ी यहाँ से भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरनेशनल टर्फ पे, जैसे परवेज रसूल गया है या बाकी उमरान मलिक गया है, कई सारे लोग और भी प्लेयर्स गए? जी हाँ, डेफिनेटली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट खास करके मिडिल प्रेशर के लिए बहुत अच्छा सूट करता है, और यहाँ के लोग एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं खेलने के लिए, और डे बाई डे जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स माहौल है बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो श्रीनगर में मैच है और यहाँ के लोग भी देखेंगे और यहाँ के लोग और अच्छा कह सकते हैं कि थ्रिलिंग मैच इज गोइंग टू बी हेल्ड, राइट? या डेफिनेटली इट विल बी थ्रिलिंग मैच। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि कोच सर से बात की, मैनेजर से बात की। नव यू कैन सी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे जहां पर रणजी ट्रॉफी मैचेस जो है 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक होने जा रही है। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार में आप ये विजुअल इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मॉर्निंग सेशन हो रहा है। मॉर्निंग सेशन के साथ किस तरीके से जो प्लेयर्स है, जो सर्विस प्लेयर्स है, जो बाहर से प्लेयर्स आए हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका प्रैक्टिस सेशन क्या होता है। और मैचेस को लेकर बात करें तो अभी यहाँ पर श्री मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और टॉस के साथ साथ इस मैच को कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट अबाउट इट कि मैच एक तो ऑलरेडी हो चुका है, आज दूसरा मैच है यहाँ पर, मगर थ्रिलिंग एनवायरनमेंट और थ्रिलिंग एक्साइटमेंट के साथ कह सकते हैं कि क्रिकेट का जोश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ है इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने स्टीमाल श्रीनगर में आर्ट्स नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौका पर आर्टिस्ट्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी हुनरमंदी को देखकर खुशी महसूस होती है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से मरकजी सरकार से बात की है। उन्होंने कहा कि मरकज से यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात दूर करने की कोशिश करेंगे। गुलिस्तान में नुमाइंदा इमरान नाइको से उन्होंने खास बात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। नासिर साहब, शुक्रिया आपका। पहला कमेंट आपसे, जब हम आर्ट को देखते हैं तो किस तरह से आप फील करते हैं, और जो आर्टिस्ट हमारे हैं वो क्या उम्मीदें रखते हैं इस इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे तश्कील पाई है? इससे वो यहाँ गवर्नमेंट से उम्मीद रखने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वो अपना आर्ट लोगों के पास लाए हुए हैं और अपने आर्ट से लोगों को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कमर्शियली इसको यहाँ जो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को अपना आर्ट दिखाने के लिए आए हैं। और इतना टैलेंट है इनके पास जो देख के आदमी खुश होता है। और मुझे वैसे भी इसके साथ थोड़ा बहुत दिली लगाव है, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से इन्होंने काम किया वो आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं इस टैलेंट तक पहुँचने के लिए, और बड़ी खुशी हुई इनका टैलेंट देखकर। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। अब मुख्तलिफ बातें उससे हो रही है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशल है उस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये लाजमी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर, मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा से मुलाकात करते हैं।
लाजमी तौर है इस स्टेट की जो मुश्किलात हैं, खासकर जो 2019 के बाद मुश्किलात हुई हैं, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाजमी तौर पर बात करनी है। स्टेट हुड के बारे में बात की गई, जो कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेट हुड को जो है रिस्टोर करने के लिए, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी और उसका जो उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से वो मिले, और मुझे जो इत्तला मिली है कि जो उनका बड़ा फोर्थ कमिंग था। एक तो सब ने एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का हल हो सके, और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेट हुड भी जल्दी रिस्टोर होगा। नाथ साहब, जो यहाँ स्टेट आर्टिकल 370, 35 ए के फेवर में सियासी जमातें या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ है, वो तनकीद नेशनल कॉन्फ्रेंस पे करती है कि जो कैबिनेट ने स्टेट हुड रेजोल्यूशन पास किया, बेहतर था कि आर्टिकल 370, 35 ए पे, आल्दो कि आपका उस पर रेस्पॉन्स आया है, फिर भी जाना चाहिए। देखिए जनाब, बहुत जल्दी कर रहे हैं वो, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए सरकार को बने हुए, सब कुछ 8 दिन में हो नहीं सकता। हम वादाबंद हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में अपनी बातें की हैं वो हम ज़रूर अमलाएंगे और उनको ज़रूर पूरा करके देंगे लोगों की उम्मीदें हैं, और जायज़ है, उनका हक है उम्मीदें रखने का, उन्होंने अपनी सरकार चुनी है। आगे बढ़ते पूंछ जिला के शाहपुर में गुज़िश्ता रोज बारूदी सुरंग के धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को मिलिट्री अस्पताल पूंछ ले जाया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उसे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जख्मी अफराद की शनाख्त 40 साल हनीफ के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि शाहपुर के सरवी इलाके में हनीफ अपनी जमीन पर लकड़ियां जमा कर रहा था कि उस दौरान गलती से उसका पांव बारूदी सुरंग पर गिर गया और वो धमाके से जख्मी हो गया। जख्मियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से माली इमदाद का मुतालबा किया। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, मैं अपनी खेती में था साहब। ये शाहपुर की उस साइड में जहाँ काइयाँ पड़ता है, हमारी दूध शाहपुर ये वो खेती थी हमारी, बाकी जमीन हमारी पूरी डिफेंस के अंदर है साहब। थोड़ी सी बची हुई है, उसने पश्चिम जा रहे थे मेरे ऊपर, तो मैंने उनको जाकर भगाया, तो नीचे ले आया। रास्ते में चलते चलते नाली वहाँ निकाल रखी है, नाली के अंदर मेरा पैर पड़ा तो ब्लास्ट हो गया। तो मैं काम करता हूँ सर, पोर्टर का काम करता हूँ आरटी के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, मेरी लाश बचाई जाए। बाकी मैं आर्मी से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। 29वीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट बिल्डर्स एंड स्नोकर चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद आज द बिल्डर्स एंड स्नोकर एसोसिएशन JNK ने जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम किया। चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब का इफ्तिताह बलजिंदर पाल सिंह डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर JNK सपोर्ट्स काउंसिल ने किया। इस मौका पर कुलदीप शर्मा जनरल सेक्रेटरी, अशोक चौधरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ईशान चौधरी, आकाश तलवार और अनिल वडेरा सीनियर बॉक्सिंग कोच, मैनेजर, इंडोर स्टेडियम और दीगर तमाम सरकार भी मौके पर मौजूद थे। सैकड़ों खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के लिए सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराई है। चैंपियनशिप का आगाज आज सब जूनियर जुमरे के मैचों से हुआ। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा ने स्लॉटर हाउस तामीर करने की शुरुआत की थी और इस तामीराती काम के लिए 1 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए गए थे और मज़कूरा इमारत की तामीर नए बस स्टैंड पुलवामा के करीब साल 2022 में शुरू की गई थी, लेकिन मज़कूरा इमारत पर तामीराती काम अचानक रोक दिया गया है और ये जगह अब कूड़ेदान में तब्दील हुई है। मकामी लोगों ने नौमंद से हुकूमत और LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। काउंसिल पुलवामा ने जो है एक कॉमनली डिसीजन लिया था और अप्रूव हुआ था स्लॉटर हाउस जो हमारा अड्डा है ऊपर वहाँ पे, बट कुछ रीजंस की वजह से जो हमें भी खुद पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या वजूहात हैं कि हमारी इस कम्युनिटी को और पुलवामा को जो है इसे दूर रखा जा रहा है। उससे जो है पैसे भी जो है वहाँ पे लगाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आधा हो चुका है। बदकिस्मती से जो है काम रुका हुआ है और मैं फिर से आपके माध्यम से जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे हमारे CM साहब हैं या हमारे LG साहब हैं या हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं या हमारे DC साहब हैं और खुद हमारे जो है वही ग्राम परा साहब जो इलेक्टेड MLA हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस को देखें कि कहाँ पे कौन सी वजूहात हैं, अगर कुछ है तो उसको दूर करें। और एक्चुअली ये 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया था म्युनिसिपल काउंसिल की ओर, एक अच्छा
1.3 करोड़ रुपये चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आने वाली है और इस हवाले से तैयारियां शुरू हुई है। जम्मू में इन दिनों कुम्हार अपने अहलखाने के साथ मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जम्मू के बलवाल ब्लॉक के गांव घरोटा की कुम्हार भी इस वक्त अपना सारा काम छोड़कर दिए बनाने में मसरूफ है। इन लोगों के मुताबिक इनके पास साल भर दिवाली पर काम नहीं होता। दिवाली के त्यौहार पर उनके पास लोग ही नहीं बल्कि दुकानदार भी आते हैं और मिट्टी के दिए उनसे खरीदे जाते हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने चीनी सामान खरीदने के बजाय मिट्टी के दिए खरीदने की बात की। उन्होंने कहा कि लोग मिट्टी के चिराग खरीदते रहेंगे तो ये कदीम फन भी जिंदा रहेगा। हमारा नाम है जानकराज प्रजापत। हम दिया जाली बनाते हैं और दुकानदार भी रहते हैं और सभी रहते हैं। जो हरिदारे जाली होता है ऐसा काम नहीं होता है। दूसरा दिया मिट्टी महंगी है और दिया भी 2 रुपये देते हैं। दुकानदार 3 रुपये देते हैं और क्या 5 रुपये बेचते हैं। हमारा काम है जाली वर्ग है। बाकी ऐसा है जाली लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। हर इंसान जो है आज जो चाइना का माल आ गया है उसे छोड़िए, तो जो हमारा लोकल वोकल जो है, जैसे कहते हैं कि हमारा जो लोकल जो बनते हैं उसी को हमें इस्तेमाल करें और अपने जो भाई बहन जो हमारा जो काम करते हैं ये लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग खरीदेंगे नहीं, हम लोग खरीदेंगे नहीं तो ये जो काम है बंद हो जाएगा और आने वाले समय में जो आने वाली नस्लें हैं वो भूल जाएंगे क्या। क्योंकि जो दीवा जो है जब बच्चा जन्म लेता है तब हम लेते हैं, उस पर शादी होती है, धरास रखा जाता है, उसमें भी दिया बाला जाता है। जब तक वो जो नई दुल्हन घर में ना आए उसकी पूजा ना करें आरती से तब तो चलता है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।